Hello and welcome. Welcome to the last chapter of Science, which is chapter number 10, Space Missions. And this is our first learning session for this chapter. Okay. Before we begin any new chapter, the first thing that we discuss is what is so special about this chapter, right? Why should we learn this chapter? So I'm sure you must have your own reasons why you are interested in learning this chapter, because generally students are very much interested in anything related to space, but in any case I'm going to give my own reasons. Okay, so the first reason is humans by nature are very curious. We want to know everything. We want to know how our bodies work. We want to know how our surroundings work. We want to know how earth was created, how the universe was created, what are the laws behind the universe, who created us, so on and so forth. So we are always curious. We want to know everything around us. So if we are really serious about knowing the world outside Earth, we'll have to send space missions outside Earth, right? Those missions will be exploration missions, so which will go to different planets, maybe outside our solar system, outside our galaxy, so on and so forth, to observe and explore other worlds outside Earth. So that is my first reason. Humans by nature are very curious and they want to know each and everything around them. Second reason is exploration. Your age must be somewhere around 16, right? And you all will live around 80 to 90 years of till the age of 80 to 90 years, right? So that will be around 2100. So you will be living till 2100. By then, hopefully, humans might have colonized either moon or Mars or both. So at any given point of time, there are a few people who are not living on Earth. They live on the International Space Station, which is in space. So at any given point of time, there are a few humans which are not living on Earth. Similarly, after say 80 to 90 years of time, there will be a few humans, hopefully, who are permanently living either on Moon or permanently living on Mars in their own colonies. Okay, maybe one of you all who's watching this video may be part of that colony, right? You might get to go to Moon, you might get to go to Mars, so on and so forth. So if that is your aspirations, if you would like to volunteer, if that is something you're looking forward to and you want to understand how that is going to happen, again, space missions is an important and interesting chapter for you all. And the third, and this is the most practical answer, is many satellites that we send in our Earth's orbit around Earth's orbit. Matlab, whatever objects that we sent that revolve around the Earth, they keep moving around the Earth. Those have many practical applications. Say, for example, internet through which you'll communicate. The internet through which you're watching this video probably is coming from some satellite which was sent in the space around to move around the Earth a few years back. That's one application. The other application I can think of is weather forecasting, right? So whenever there is going to be a huge storm coming in our area, we get an alert by the Indian Meteorological Department, right? IMD. So IMD is going to issue an alert कि अगले 2-3 दिन में यहाँ पे बहुत बारिश होने वाली है या फिर storm आने वाला है, hurricane आने वाला है, so on and so forth. For that you need observations, and those observations are best taken from space. So there are many such applications of satellites around Earth's orbit. Okay, and many of those applications we're going to see in today's learning session itself. So if you want to launch a satellite which is going to give us information about Earth from space, even then you need to understand space missions very well, because it is going to take a space mission to launch that satellite in an orbit around Earth. So these were a few reasons why this chapter is so interesting to learn and why we should learn this chapter. Okay. So these are the topics we are going to cover in today's learning session. The first one is space missions. What are they? Next, what is the need and the importance of space missions? And finally, we are going to learn about artificial satellite. One more thing which I forgot to tell you all in our previous slide, which was why is it important for us to learn this chapter? If you are interested in working in a field related to space, then India has its own space agency, right? ISRO, Indian Space Research Organization. So if you want to work for ISRO, again, then this chapter is an important chapter for you all. If you become a good engineer, ISRO is going to hire you and then you can work on space missions. Yes, so that point I had forgotten. I just wanted to bring that up. Let's move ahead to objectives for the day. So our first objective is students will be able to enlist and describe various types of artificial satellites. Artificial satellites वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उन सबका एक लिस्ट बनाने आना चाहिए
उसका सारे लिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसका डिस्क्रिप्शन लिखने आना चाहिए. And the second learning objective is students will be able to explain importance of space missions. Space missions क्यों important है ये explain करने आना चाहिए. So these are your two learning objectives for today. These are the new words we're going to learn today: asteroid, meteor, comet, and celestial. So let us begin with a can you tell type of questions, which is given on page number 135. Okay, there are 4 questions. These are very simple questions. I hope you all are able to answer them by yourself. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to write the answers by yourself. Most of you all should be able to write the answers by yourself. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you have your answers ready in your notebook. Now let us discuss them one by one. So the first question was, what is the difference between space and sky? So the region of the atmosphere and outer space seen from the earth is known as sky. So earth ka jo atmosphere hai, that is part of the sky, as well as outer space which we can see from earth is known as sky. Then what is space? The continuous empty space between the spheres, and these spheres can be planets or stars. Okay, so planets और stars के बीच में जो empty space होता है उसको हम space बोलेंगे. Okay, so that's the difference between sky and space. Sky या तो एटमॉस्फेयर हो सकता है या फिर अर्थ से जो दिख रहा है वो हो सकता है, बट जो कुछ भी स्काई में दिख रहा है उसके बीच में जो कुछ भी एम्प्टी स्पेस होगा उसको हम स्पेस बोलेंगे. So that's the difference between sky and space. What are the different objects in the solar system? So the various objects present in the solar system are the sun. The sun we know, right? It is at the center of our solar system. It gives out light, it gives out energy, it gives out heat, so on and so forth. Then we have the planets. Planets are rocky substances which are going to revolve around the sun. Satellites. What are satellites? Satellites are objects which revolve around planets. Okay, so जो planets है ये sun के around revolve करेंगे, whereas satellites will revolve around planets. Asteroids. So sun, planets, and satellites, most people know what they are, but many people what they don't know is the difference between asteroids, comets, and meteors. All three are different. Okay. So what are asteroids? Asteroids are basically rocks that are orbiting the sun. Okay, so planets और asteroids में क्या फर्क हुआ? Planets भी sun के around जा रहे और asteroids भी sun के around जा रहे, दोनों rock से बने हुए हैं. So what's the difference between planets and asteroids? The difference is in size. Okay, अगर एक साइज से ऊपर हो गया तो ही हम planet बोलते हैं, उस साइज से अगर छोटा हो गया तो हम asteroids बोल देते हैं. Okay, and hence there was this huge debate whether we should include Pluto in our planets or not. प्लूटो को पहले रखा था, फिर निकाल दिया, वापस रखा, वापस निकाल दिया, so on and so forth. There was a lot of debate कि प्लूटो ये हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट होना चाहिए, एस्टेरॉइड होना चाहिए. What happened was they first observed Pluto and they considered it as a planet. फिर बाद में कुछ ऐसे मून्स हमने डिस्कवर किए जो एक्चुअली उससे बड़े हैं, कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स हमने डिस्कवर किए वो प्लूटो से बड़े निकल गए. सो या तो एस्टेरॉइड्स को हमें प्लैनेट्स बोलना पड़ेगा या फिर प्लूटो को हमें एस्टेरॉइड बोलना पड़ेगा. सो देयर वाज लॉट ऑफ डिबेट कि प्लूटो को प्लैनेट बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. You can read about it more on the internet. So the basic difference between planets and asteroids is planets का size बड़ा होगा, asteroids का size planets जितना बड़ा नहीं होगा. Okay, so asteroids are nothing but rocks which are revolving around the sun. What are meteors then? So meteors are basically asteroids which enter Earth's atmosphere. So sun के आजू बाजू रिवॉल्व करते समय बीच में अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर दिया तो उसको हम उस एस्टेरॉइड को हम मीटियोर बोलेंगे. ओके, एंड व्हाट आर कॉमेट्स? कॉमेट्स आर आल्सो रॉक्स which are revolving around the sun, but the difference is comets काफी bright होंगे. ओके, और उनका एक टेल होगा. So वैसा कॉमेट आगे की तरफ जा रहा है तो उसके पीछे एक टेल दिखेगा और वो काफी ब्राइट होगा. Why is that? बेसिकली उसमें आइस हो सकता है. अगर इफ इट हैज आइस एंड व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सन, वो आइस धीरे धीरे मेल्ट होता है और क्योंकि वो आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है उसका एक टेल बन जाएगा, right, because of the melting ice. So that is comet. Okay, so that's the difference between asteroids, comets, and meteors. So these are the different objects that we observe in our solar system. The third question was, what is meant by a satellite? So satellite is the celestial body. What is the meaning of celestial? Celestial ये काफी पुराना word है. Okay, so celestial means of heaven. I said right, बहुत पुराना word है. तो तभी इतना स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था. सो celestial यानी स्काई को लोग हेवन मानते थे कि स्काई में कहीं ना कहीं पे तो हेवन है.
और जो कुछ भी हेवन से है उसको हम सेलेस्टियल बोलते हैं। ओके, बट नाउ वी नो कि नहीं, वहां पे हेवन अब तक तो दिखा नहीं है। हम लोग ने जितने भी सैटेलाइट्स निकाले, जितने भी टेलीस्कोप से हमने देखा है पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में, आज तक हमें कभी हेल या हेवन दिखा नहीं है। ओके, सो सेलेस्टियल इज जनरली नोन एज फ्रॉम हेवन, बट हमारे लिए इट इज गोइंग टू बी स्काई। तो जो कुछ भी स्काई में बॉडी होने वाला, स्पेस में जो कोई भी बॉडी होने वाला, दैट इज नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। So it is satellite, the celestial body that revolves around a planet without independently revolving around the sun is called as a satellite. Okay, ये प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए और सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करना चाहिए खुद से। तो उस सेलेस्टियल बॉडी यानी जो स्पेस में बॉडी, उसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द अर्थ हैव? तो सैटेलाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है? जो पहले से था, ह्यूमंस नहीं बनाया, ह्यूमंस ने नहीं बनाया। ओके, सो अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं। तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, राइट? खुद से सन के अराउंड तो रिवॉल्व नहीं करता, मून के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो इट्स अ सैटेलाइट बाय द डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट। उसको हमने बनाया क्या? मून ने नहीं, हमने नहीं बनाया, तो उसको नेचुरल बोलेंगे। समझो हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट स्पेस में डाल रहे हैं जिससे और हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम humans ने वो सैटेलाइट बनाया। ओके, सो दैट्स योर आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन। ऑल फोर क्वेश्चंस आर वेरी इजी, आई होप यू आर एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। ओके, लेट्स मूव अहेड and let's look at space missions. So substantial developments in technology, especially space technology, in the later half of 20th century. Later half of 20th century यानी 20th century 1900 से शुरू हो जाएगा। ओके, 20th century है, so 20 में से 1 माइनस कर दो, 19। so 1910, 1950, 1920, 1930, 40, 50, ये पूरा 20th century। ओके, सो लेटर हाफ बोला है, लेटर हाफ यानी 1950 के बाद। सो 1950 से लेकर 1999 तक काफी डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी और स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी में, एंड इट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट मेकिंग स्पेस वॉयज पॉसिबल। ओके, लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी 1950 से 1999 तक हमने काफी डेवलपमेंट कर दी थी और हमने स्पेस क्राफ्ट बनाना शुरू किया था, राइट? और उससे स्पेस वॉयज पॉसिबल हो। वॉयज मतलब क्या? वॉयज इज बेसिकली लॉन्ग जर्नी। दैट वर्ड इज जनरली यूज्ड व्हेन पीपल टेक आउट शिप्स टू गो एंड एक्सप्लोर फार अवे लैंड्स, राइट? तो उसको हम वॉयज बोलते हैं। तो वॉयज जनरली शिप से जो वॉयज करते थे उसके लिए ये वर्ड यूज करते थे, बट जैसे हमने स्पेस क्राफ्ट बना लिए तो ये वॉयज स्पेस मिशन के लिए भी ये वर्ड वॉयज स्पेस मिशन के लिए भी यूज होने लग गया। ओके, सिंस देन more than 1,000 artificial satellites have been placed into orbits around the earth. अभी 1000 से भी ज्यादा ऐसे सैटेलाइट्स है जो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। ओके, इनफैक्ट अभी इतना ज्यादा भीड़ हो गया है कुछ कुछ ऑर्बिट्स में, कुछ कुछ हाइट पे अर्थ के ऊपर, कि वहां पे कचरा जमा होने लग गया है। क्योंकि सैटेलाइट्स ऊपर जाएंगे, कुछ साल के लिए ऑपरेशनल रहेंगे, कुछ साल के बाद ऑपरेशन उसका खत्म होने के बाद वो वैसे के वैसे यहाँ पे कचरे की तरह पड़ा होगा, एंड इट इज प्रॉब्लमैटिक, राइट? अगर समझो अर्थ से हमने कोई दूसरा स्पेस मिशन डाला और वो कचरे के साथ टकरा गया तो खत्म। इतने लाखों डॉलर्स, करोड़ों रुपए से जो हम स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है उस कचरे की वजह से। सो नाउ दे आर आल्सो थिंकिंग अबाउट हाउ कैन वी ब्रिंग द डेब्री डाउन। उसको डेब्री बोलते हैं, कचरे को डेब्री बोलते हैं। सो हाउ कैन वी मेक ऑल दैट डेब्री, कचरा, कम डाउन यूजिंग सम न्यू स्पेस मिशन, दैट आल्सो दे आर ट्राइंग। अभी तो बहुत भीड़ होने लग गई है हमारे ऑर्बिट्स में, तो अब तक हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स ऑर्बिट में डाल दिया अर्थ के अराउंड। Additionally, space missions have been undertaken for close observation of various objects in our solar system. तो ऐसे भी बहुत सारे स्पेस मिशंस है जो हमने मून पे भेजे हैं, मार्स पे भेजे हैं, जुपिटर के आजू बाजू भेजे हैं, ताकि हम बाकी सारी चीजें भी हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्जर्व कर सके। We can classify the space missions into two categories. So the first category is missions in which the objective is to put artificial satellites in orbits around the earth for research and various other useful applications. अगर अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट भेजना है, वो हमारा फर्स्ट टाइप का मिशन हो गया, राइट? जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। सेकंड क्या हो गया? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड टाइप ऑफ मिशंस इज टू सेंड स्पेस क्राफ्ट्स टू आउटर स्पेस for close observation and understanding of the objects in solar system or even outside our solar system. So first क्या था? Artificial satellites which will revolve around the earth. सेकेंड कैटेगरी क्या है? मिशन जिसमें स्पेस क्राफ्ट सेंड करेंगे सोलर सिस्टम में बाकी सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, फिर सोलर सिस्टम के बाहर जाने के लिए भी हम उन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके,
Okay, so these are two types of space missions. So that was about space missions. Now let us look at need and importance of space missions. क्यों हमें जरूरत है space missions की? क्या importance है space mission का? Okay, and I'll give you some context. Basically हमारा जो इसरो है, इसरो करोड़ों रुपए रोज खर्चा करता है स्पेस मिशंस पे, राइट? इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे इंजीनियर्स और इतना सारा मटेरियल वगैरह वगैरह हमें खर्चा करना पड़ता है। किसके जेब में से जाता है? वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही है। गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आए? गवर्नमेंट के पास पैसे हमसे आए और हमसे टैक्स लेते हैं। whenever you buy a toothpaste, whenever you buy a pencil, whenever you buy a book, you are paying some tax, and that tax is collected by the government which is given to isro. So इंडिया में जहाँ पे आज भी लोग भूख से मर जाते हैं, आज भी लोग बेसिक बेसिक बीमारियों से मर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समझो किसी के पास मेडिसिन के पैसे नहीं होंगे, किसी के पास हॉस्पिटलाइजेशन के पैसे नहीं होंगे, सबको हम अच्छे से खाना नहीं दे पा रहे, सबको अच्छे से रहने की फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, तो ऐसे कंट्री में does it make sense for India to put money in spacecrafts? That's an important question to think about. Okay, and I would really like if you put your thoughts down in the comments of this video. Do you think India should have space missions? जब हमारे कंट्री में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, हमें कुछ पैसे स्पेस मिशंस में डालने चाहिए, yes or no? I would really like to understand your answer. Okay, so now let us look at what is the need and importance of space missions. So the world has become a global village due to space missions. सब लोग एक बड़े से गांव की तरह हो गया पूरी की पूरी दुनिया। Today we can contact a person in any part of the world within a second. अगर अमेरिका जो हमारे अर्थ के दूसरी तरफ है, अगर आज रात है हमारे इंडिया में, तो अमेरिका में सुबह हो रही है, राइट? सो अर्थ के दूसरी तरफ है, वहां पे भी मुझे किसी से बात करनी होगी, एक सेकंड में मैं कॉल लगा सकता हूँ, राइट? We can gather information about worldwide events sitting at home. So अभी फ्रांस में क्या चल रहा है, अभी इटली में क्या चल रहा है, अभी स्पेन में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, सब कुछ हमें पूरी दुनिया में क्या चल रहा है हमें इंफॉर्मेशन घर पे बैठे बैठे मिल जाती है। यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, क्योंकि तुम लोग ये वीडियो भी इंटरनेट पे देख रहे हो। सो इंटरनेट का क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हें पता है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इंटरनेट हैज बीन सो यूजफुल, राइट? सब लोग अपने घर से काम कर पा रहे हैं, students are able to learn from their home, so on and so forth. So internet is very important, right? Due to internet every information is available at our fingertips. इंटरनेट की वजह से जो हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे बस फिंगर टिप्स पे है, बस गूगल पे टाइप करके तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। An important application, I think this is one of the most important after internet obviously. It has become possible to get advanced alert about natural calamities to take proper precautions. Okay, as I said, अगर कोई सुनामी आने वाली है, कोई स्टॉर्म आने वाला है, हेवी रेनफॉल होने वाला है, हमें पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो देयर वाज अ टाइम जब IMD, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देता था ना हमेशा गलत होता था, स्पेशली व्हेन आई वाज बैक इन स्कूल। सो IMD अलर्ट निकालेगा, राइट, कि कल बहुत बारिश होने वाली है, और हम लोग को पता होता था कि कल पक्का बारिश नहीं होने वाली, इतना गलत इंफॉर्मेशन निकलता था। इट्स नॉट दैट कि वो लोग अच्छे से काम नहीं करते या फिर IMD में होशियार साइंटिस्ट एंड इंजीनियर नहीं है, वैसी बात नहीं है। फर्स्टली प्रेडिक्ट कर पाना एटमॉस्फेयर को या फिर वेदर को, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ओके, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, but because we have put more and more satellites in Earth's orbit, we have better technology now, we have better computers now, so on and so forth, और हमारी टेक्निक्स भी इंप्रूव हो गया, इसलिए अभी हम काफी अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ओके, अगर IMD इशू करता है नोटिस मुंबई में हेवी रेनफॉल होने वाला है, 10 में से एटलीस्ट 7 बार तो सच होता है, राइट? सो आई थिंक IMD has started working very well. One of the main reasons is we have better satellites because of space missions, right? There are other factors as well, as I said, right, कि अभी हमारे पास अच्छे कंप्यूटर्स है, अच्छे टेक्निक्स है, so on and so forth, but satellites is a huge part of it. Okay, so just imagine अगर हमें 24 घंटे पहले भी पता चल गया कि यहाँ पे इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है, वहां पे जो कुछ भी अथॉरिटीज होंगे पहले से काफी अच्छे से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट application, importance of space missions. Next, during war, it is possible to get information about the actions of the enemy through aerial surveillance using satellites. Okay, अगर समझो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, तो हम हमारा सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर रख सकते हैं और पाकिस्तान की हर एक्शन पे हम नजर रख सकते हैं, राइट? और उससे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दे सकते हैं, जिसको यूज करके हम वो वॉर जीत सकते हैं। सो वॉर में काफी
उसका इंपॉर्टेंस है। आई टेल यू वन मोर शॉर्ट स्टोरी अबाउट दिस, ओके। सो इंडिया हैड टू डेवलप एवरीथिंग बाय इटसेल्फ, राइट। थोड़ा बहुत रशिया का हेल्प मिला है हमें, बाकी इस वर्ल्ड में किसी ने हमारा ज्यादा हेल्प किया नहीं है। सिर्फ एक रशिया हम बोल सकते हैं, काफी अच्छा दोस्त है हमारा, काफी हेल्प करता है हमें। सो बेसिकली जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना यूएस ने, तब इंडिया को भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था, ओके। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉम्ब होता है देन वी कैन फील सेफ, राइट, कि अच्छा हम पे कोई अभी आंख उठा के देख नहीं सकता, हम पे कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर हम पे अटैक कर दे तो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे तुम्हारे सिटीज के ऊपर, सो वो हम थ्रेट दे सकते हैं। सो हैविंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। सो ऑब्वियसली कोई हमें देना चाहता नहीं था, और स्पेशली जिनके पास ऑलरेडी था, यूएस वगैरह के पास, उनको किसी को बनाने देना नहीं था कि हमारे पास ही होना चाहिए न्यूक्लियर बॉम्ब, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। बट इंडिया वांटेड इट्स ओन न्यूक्लियर बॉम्ब, तो अमेरिका हमें बनाने दे नहीं रहा था। सो अमेरिका ने काफी सैंक्शंस लगा दिए थे जब हमने पहली बार बनाने की कोशिश की, कि हमको पता चल रहा है कि तुम लोग बॉम्ब बना रहे हो, न्यूक्लियर बॉम्ब, और अभी हम लोग तुम पे रिस्ट्रिक्शंस डालने वाले। एंड ऑब्वियसली अमेरिका इज सच अ important and such a super power that it has lot of power in world politics. तो तभी वो लोग ने क्या किया था, वो लोग ने अपने सैटेलाइट्स अर्थ के ऊपर, सॉरी इंडिया के ऊपर डाल दिए थे, और वो इंडिया के हर एक्शन पे नजर रख रहा था। एंड जब एक्चुअली हमने हमारा बॉम्ब बनाया, तब हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे कि अच्छा सैटेलाइट किस टाइम पे जाने वाला है यूएस का, कितने सैटेलाइट्स है यूएस के, कितना देर तक हम नीचे काम कर सकते हैं, कौन सा टाइम पे हमें काम करना बंद करना पड़ेगा ताकि यूएस का सैटेलाइट हमें देख ना पाए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड मूवी कॉल्ड पोखरन, आई थिंक उसमें इब्राहिम, जॉन इब्राहिम है। Yeah, so I think the name of the movie is Pokhran. It's a very interesting story कि कैसे यूएस हमारे ऊपर सैटेलाइट से नजर रख रहा था, और हम लोग ने उसके बावजूद हमारा खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, ओके। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक, इट हैज लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू आल्सो, कि अगर तुम्हारे पास अच्छे सैटेलाइट्स है पूरे अर्थ के आजू बाजू। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ। सो अगर हमें ढूंढना है कि कहाँ पे फॉसिल्स मिलेंगे, कहाँ पे मिनरल्स मिलेंगे, हम सैटेलाइट्स में से फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। Thus, there are unlimited applications of space missions, and today space technology is an inevitable part of development of a nation. तो ऐसे बहुत सारे applications हैं space missions के, and अगर किसी भी country को आज develop बनना है, then they need to have very strong space mission, and we luckily have a very strong space mission. Okay, ISRO is considered one of the best space organizations in the world, and हमारे ISRO की खासियत है कि हम सब कुछ सस्ते में करते हैं। We were the first country to land a rover on Mars in our first attempt, और वो सबसे ज्यादा सस्ता था। यही काम अगर अमेरिका को करना होगा नासा से, सो नासा उसके 10 टाइम्स बजट यूज करता है, बट हम लोग बहुत सस्ते में कर लेते हैं। सो ये हमारी स्पेशलिटी है, कम खर्चे में कैसे हम स्पेस मिशन कर सकते हैं। सो इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस टेक्नोलॉजी, सॉरी स्पेस प्रोग्राम, ओके। It is considered very prestigious to work for ISRO. Okay, if you're very good engineer, only then you get to work in ISRO. Okay. नेक्स्ट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमने देखा था, राइट, और नेचुरल सैटेलाइट्स जो अपने आप से बना हुआ है, ह्यूमन ने नहीं बनाया। सो नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। एस्ट्रोनॉमिकल यानी जो स्पेस में है। नेचुरल क्यों? क्योंकि नेचर ने बनाया, ह्यूमंस ने नहीं बनाया। जो या तो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, या फिर कोई दूसरे प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा है। सन को ऑर्बिट नहीं कर सकता सैटेलाइट, कोई ना कोई प्लैनेट को ऑर्बिट करना चाहिए, तो ही हम उसको सैटेलाइट बोलेंगे, ओके। Next, the moon is the only natural satellite of the earth. We have seen this already. Some other planets in the solar system have more than one natural satellites, okay. So ऐसे बहुत सारे planets हैं हमारे solar system में जिसके एक से ज्यादा natural satellites हैं। किसी किसी तो 60 satellites भी होते हैं, okay, और कुछ कुछ satellites इतने बड़े होते हैं कि वो almost planet के size के comparable होते हैं। Similarly, if a man-made object revolves around the earth or any other planet in a fixed orbit, it is called artificial satellite. तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जो मैनमेड होगा, ह्यूमंस ने बनाया, तो उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे, ओके। एंड दिस इज हाउ अ टिपिकल सैटेलाइट लुक्स लाइक। The first artificial satellite Sputnik was sent to space by Soviet Union in 1957. What is Soviet Union? प्रेजेंट डे रशिया। रशिया को पहले सोवियत यूनियन बोलते थे। सोवियत यूनियन एक बहुत ही बड़ा कंट्री था, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो टूट के फिर बाद में छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों में से सबसे बड़ा टुकड़ा आज है रशिया, ओके। सो रशिया ने एंड
रशिया बैक देन विच इज सोवियत यूनियन, या फिर इसको यूएसएसआर बोलते थे। तो यूएसएसआर भी सुपर पावर था अमेरिका की तरह, और उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, राइट। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट कोल्ड वॉर इन हिस्ट्री। सो कोल्ड वॉर के टाइम पे हर चीज में कंपटीशन करना था उनको, ओके, अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर या फिर अमेरिका वर्सेस रशिया। सो स्पेस में भी कंपटीशन हो रहा था। सो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पटनिक यूएसएसआर ने डाला था 1957 में, और वहां से स्पेस रेस शुरू हो गया। इट इज पॉपुलरली नोन एज स्पेस रेस, कि कौन सबसे पहले स्पेस में जाता है। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस तरीके का स्पटनिक रशिया ने सेंड किया, फिर बाद में अमेरिका ने सेंड किया, फिर पहला इंसान स्पेस में कौन डालेगा, पहला इंसान मून पे कौन डालेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा रेस चल रहा था रशिया एंड अमेरिका के बीच में, ओके। बोथ ऑफ देम वर सुपर पावर एट दैट टाइम। टुडे मोर देन 1000 satellites are orbiting the earth. The satellites work on solar energy, okay। ये लोग इनमें हम लोग पेट्रोल या फिर डीजल डाल के नहीं भेजते, उसको सोलर एनर्जी पे काम करने लगाते हैं। सो इन द प्रीवियस स्लाइड में ये देखा होगा, ये जो फ्लैप्स है ना, ये फ्लैप्स के दे आर नथिंग बट सोलर सेल्स, ओके। सन का एनर्जी यूज करके वो लोग चार्ज रहते हैं। So solar photovoltaic panels are attached on both the sides of these satellites like wings. तो ये solar photovoltaics है, so photovoltaics, photovoltaics, it is made up of two words, photovoltaics, photo यानी light, voltaics यानी electrical energy। so photo को यानी light को, voltaic यानी electricity में convert करने वाले panels को photovoltaic panels बोलते हैं, okay। so they are attached on both sides of satellites like wings. Instruments are installed in satellites to receive and transmit signals from and to earth. So जैसे मोबाइल एंड लैपटॉप विल टॉक टू ईच अदर यूजिंग वाईफाई, ब्लूटूथ एक्सेट्रा, वैसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं ताकि तो सैटेलाइट्स कैन टॉक टू कंप्यूटर्स ऑन अर्थ। The satellites have various other types of instruments depending on their functions, okay। फॉर एग्जांपल अगर वो सर्वेलेंस सैटेलाइट है तो उस पर कैमरा लगा देंगे, समझो वो साइंस के लिए रिसर्च कर रहा है तो उस पर टेलीस्कोप लगा देंगे। अगर तुम अर्थ से किसी चीज को देखोगे तो बीच में एटमॉस्फेयर आता है, क्लाउड आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर तुम स्पेस में जाके टेलीस्कोप लगा दोगे तो बीच में कुछ आएगा नहीं, सब कुछ एकदम क्लियरली दिखेगा। सो तो वहां पे टेलीस्कोप हो सकता है, कैमरा हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग सेंसर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसको किस रीजन की वजह से वहां पे डाला है, okay। One such satellite is shown in the figure. Here is the figure, okay। You need to remember all the figures in this chapter, okay। I have a feeling कि इस चैप्टर में से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बिकॉज जनरली इस चैप्टर में देयर आर मेनी डायग्राम्स, सो मेक श्योर टेक्स्ट बुक में जितने भी डायग्राम्स दिए उनको सब तुम अच्छे से याद कर रहे हो। सो देयर इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसका डायग्राम दिया है। Signals transmitted from the earth to the satellite and from the satellite to a mobile tower and to mobile are and mobile phone are shown। So सबसे पहले क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट। सो अर्थ से सैटेलाइट में सिग्नल चला जाता है, ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, एंड फ्रॉम द सैटेलाइट टू अ मोबाइल टावर। तो अभी अर्थ से सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चला गया, सैटेलाइट में से मोबाइल टावर में जाएगा, एंड फिर उस मोबाइल टावर में तुम्हारे मोबाइल में वो इंफॉर्मेशन आएगा। दैट्स हाउ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वर्क। These satellites are sent into space to perform various functions. So you need to remember this diagram and you need to remember the process, okay। अर्थ से सैटेलाइट, सैटेलाइट में से मोबाइल टावर, मोबाइल टावर में से तुम्हारे फोन में आएगा सब इंफॉर्मेशन। Now, depending on their functions, satellites are classified into following categories, and you need to really make sure you're by heading all these full forms, okay। Again, I have a very strong feeling कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, ओके। आई डोंट फील कि इसमें से गिव रीजन आएंगे, डिस्टिंग्विश आएंगे या फिर 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स आने के हाई चांसेस है। सो मेक श्योर यू आर बाय हार्टिंग ऑल दीज फुल फॉर्म्स। सो इनसैट इज नोन एज इंडियन नेशनल सैटेलाइट। GSAT is geosynchronous satellite. What is the meaning of geosynchronous? Geo मतलब अर्थ, ओके, synchronous यानी साथ में, तो अर्थ के साथ में जो घूमने वाला है, that is called as geosynchronous satellite, अर्थ के साथ घूमेगा। IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, okay। So again, इससे पहले IRNSS से पहले हम लोग को दूसरे के सैटेलाइट्स भाड़े पे लेने पड़ते थे, ओके। सो हमारा दोस्त कौन था तभी? हमारा दोस्त रशिया था। सो रशिया ने अगर समझो कोई सैटेलाइट डाला है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग रशिया से थोड़ा रिक्वेस्ट करके उसका यूज करके हम नेविगेशन कर देते हैं हमारे कंट्री में। बट नाउ दैट वी हैव आवर ओन सैटेलाइट्स इन स्पेस, we can use our own satellites for navigation in Earth. IRS is Indian Remote Sensing Satellite. Next, GSLV is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, and PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle.
सो जियो सिंक्रोनस का मतलब तुम्हें समझ गया, राइट? जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस में साथ में, तो अर्थ के साथ साथ वो सैटेलाइट घूमने वाला है, अर्थ के साथ साथ घूमेगा। पोलर सैटेलाइट का मतलब क्या है? वो पोल्स के आजू बाजू घूमेगा। ओके, सो अगर ये तुम्हारा अर्थ है तो जियो सिंक्रोनस इक्वेटर के आजू बाजू घूमेगा। एंड पीएसएलवी से जो लॉन्च लॉन्च होंगे सैटेलाइट्स, वो पोलर ऑर्बिट्स में होंगे, पोल के आजू बाजू, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसा। तो ये बेसिक डिफरेंस है जीएसएलवी और पीएसएलवी में। सो हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, इट इज इट इज वेरी गुड इन लॉन्चिंग सैटेलाइट्स थ्रू पीएसएलवी। ये हमारा स्पेशलिटी है, इसरो का स्पेशलिटी पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसको स्टार्टिंग में पोलर सैटेलाइट्स बनाने के लिए बनाया था, बट अभी आजकल इसरो पीएसएलवी से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में भी डालता है सैटेलाइट। तो अभी पीएसएलवी में हम इतने अच्छे हो गए और इतने सस्ते में हम सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं स्पेस में, कि अभी हर चीज के लिए हम पीएसएलवी यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम इसरो लॉन्चेस एनी satellite in the orbit, whenever you read that news, you always have to check कि वो GSLV है कि PSLV। 9 out of 10 times it is always PSLV, क्योंकि ISRO is now become an expert in PSLV. Okay, so that was about all these full forms. Next, artificial satellites and their types. तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप दिख रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट टाइप इज वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट का क्या काम होगा? स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर। वो आईएमडी को इंफॉर्मेशन भेजेगा, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये कौन से लॉन्च व्हीकल्स यूज किए थे, या वो भी यहाँ पे लिखा है। ओके, इनसैट, जीसैट, जीएसएलवी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो, अगर पहले पहले जीएसएलवी बहुत यूज करते थे, जीएसएलवी जीएसएलवी जीएसएलवी, बट अभी रिसेंटली हम पीएसएलवी को ज्यादा यूज करते हैं। और दूसरे कंट्रीज भी अभी हमसे लॉन्च करवाते हैं। ओके, जिनके पास खुद का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम नहीं है, या फिर जिनको सस्ते में लॉन्च करवाना होगा, वो लोग हमारे इसरो को पैसे दे देते हैं और इसरो अच्छे से सस्ते में लॉन्च करके देता है। और इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि कभी भी वो सैटेलाइट बीच में ही टूट नहीं देगा, फूट नहीं देगा, बराबर ऑर्बिट में ही जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। So ISRO has become a really an expert and at launching vehicles at very low cost. तो अभी दूसरे कंट्रीज में हमसे लॉन्च करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वर्ड से ही पता चल जाता है कि उसका काम क्या है। एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो अलग अलग लोकेशंस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। दैट्स द यूज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देन ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स। ब्रॉडकास्ट यानी तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन फैलानी है, कैसे फैलाओगे? टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम। सो अगर टीवी पे कुछ टेलीकास्ट करना है तो हम ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेविगेशनल सैटेलाइट। तो हमारे जो गूगल मैप्स है, गूगल मैप से हमें पता चलता है यहाँ से वहां जाना है तो पहले लेफ्ट लो, राइट लो, वगैरह वगैरह। ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू योर मोबाइल यूजिंग नेविगेशनल सैटेलाइट्स। ओके, तो उसका काम क्या है? फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो जब भी तुम गूगल मैप्स यूज करते हो, 4-5 सैटेलाइट्स एक साथ काम करके तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं अर्थ पे। ओके, अगर वो थोड़ा सा भी ऑफ होगा तो 1-2 किलोमीटर का भी फर्क पड़ सकता है। सो अभी 5 मीटर के बाद लेफ्ट लेना है वर्सेस 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेना है, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा, राइट? सो उसको बहुत ही प्रिसाइसली, एकदम परफेक्टली तुम्हारा लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड उसको जानना पड़ता है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, सो दैट्स द यूज ऑफ नेविगेशनल सैटेलाइट। प्रिसाइज लोकेशन क्या है, ये फिक्स करना है किसी भी चीज का। नेक्स्ट इज मिलिट्री सैटेलाइट। थैंकफुली मिलिट्री सैटेलाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, और वैसा ही होना चाहिए। मिलिट्री सैटेलाइट के बारे में सब इन्फॉर्मेशन अगर टेक्स्ट बुक में देने लग गए तो पाकिस्तानी अपना टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ने लग जाएंगे। सो मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हमारे टेक्स्ट बुक में। ओके, बट इफ यू आस्क मी माय गेसेस, उसके लिए भी पीएसएलवी यूज किया होगा। एंड लास्ट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अगर तुम्हें फॉरेस्ट को स्टडी करना है कि फॉरेस्ट कितने जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं हमारे इंडिया में, अर्थ पे कितना डेजर्ट फैल रहा है हमारे अर्थ पे, ओशियंस का क्या हाल है, पोलर आइस कितना जल्दी मेल्ट हो रहा है, एक्सप्लोर करना है तुम्हें कि कहाँ पे हमने अभी तक ह्यूमंस गए नहीं है तो उसको देखना है, चेकआउट करना है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कहीं पे माइनिंग वगैरह ज्यादा हो रही है क्या, ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, अर्थ के ऊपर से वेदर को मॉनिटर करना, ये सब काम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स करते हैं। ओके, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल। फॉर एग्जांपल मैंने बोला, राइट, टेलीस्कोप्स को भी स्पेस में डालते हैं ताकि बीच में क्लाउड्स वगैरह ना आ जाए। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ सैटेलाइट व्हिच इज अ टेलीस्कोप सैटेलाइट, जो यहाँ पे नहीं दिया। सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, बट दीज आर अ फ्यू ऑफ देम that ISRO has launched. Okay, so
Now that we have completed all that we wanted to study in this learning session, now let us look at some end of chapter questions. So this is question number 3. Answer the following questions. A question. Okay. What is meant by an artificial satellite? We've already seen this. It's a one-line answer. And second is, how are the satellites classified based on their function? ये अभी हमने वो table जो पढ़ा colorful, उसमें सब answers था. So you should be able to write the answer by yourself. I'll again wait for 5 seconds for you to write the answer by yourself, and then we will discuss the answers. Okay, at least first question का तो answer आ जाना चाहिए खुद से. वो बस एक line का answer है. So I'll wait for 5 seconds for you to write the answers by yourself first. Okay, 5 seconds are up. Let us see the answer. So the first question was, what is meant by an artificial satellite? So if a man-made object revolves around the Earth or any other planet in a fixed orbit, it is called an artificial satellite. क्या क्या है? Conditions क्या क्या है? पहले man-made होना चाहिए, हमने बनाया हुआ होना चाहिए. Second, वो या तो अर्थ को रिवॉल्व करना चाहिए या फिर कोई भी दूसरे प्लैनेट को रिवॉल्व करना चाहिए. ओके, उसके आजू बाजू घूमना चाहिए. द थर्ड इज फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक बार घूम गया फिर बाद में चला गया, बार बार उसी ऑर्बिट में जाना चाहिए, उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रहना चाहिए. देन इट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सेकेंड क्वेश्चन वाज, हाउ आर द सैटेलाइट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. तो हमने बड़े से टेबल में अभी पढ़ा था, राइट? उसको बस यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिया. I'm not going to read all of them again. I'm not going to explain all of them again. I've just explained all of them. वो जो टेबल फॉर्म में दिया था बस इसको भी यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिखा है. सो यू शुड ऑल्सो बी एबल टू डू दैट. अगर तुम्हें कोई टेबल पढ़ा है टेक्स्ट बुक में से और क्वेश्चन पूछा तो टेबल वैसे के वैसे ड्रॉ करने के बजाय तुम पॉइंट वाइज लिख सकते हो क्या आंसर. दैट यू हैव टू चेक. ओके, so make sure you're copying this in your notebook and also start by hearting all the end of chapter questions. Okay, so that is it. Just check whether you've accomplished today's learning objectives or not. Can you enlist and describe various types of artificial satellites? अलग अलग टाइप के artificial satellites का लिस्ट बना सकते हो क्या, और उसके functions डिस्क्राइब कर सकते हो क्या? If yes, then you have achieved today's first learning session. Sorry, first learning objective. And the second objective was, students will be able to explain importance of space missions. Space missions क्यों important होते हैं ये तुम explain कर सकते हो क्या? If yes, then you have achieved today's second learning objective. So that is it. These are the new words that we learned. Asteroid क्या होता है? It's a small rocky object that orbits the sun. Sun के अराउंड जाता है. Meteor क्या है? When a space rock enters the Earth atmosphere, it is called as a meteor. Comet. Comet is an object in space that looks like a bright star. काफी bright होगा वो. With a tail. उसके end में भी कुछ ऐसा छोटा सा पूछ जैसा कोई चीज होगी. And it is also moving around the sun. That वो जो पूछ है वो जनरली आइस मेल्टिंग की वजह से आती है. अगर वो सन के पास में जा रहा है तो उसके अंदर जो कुछ भी आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और वो मेल्टिंग की वजह से एक लंबा सा पूछ दिखेगा उसका. सो दैट इज कॉमेट. एंड सेलेस्टियल, इट्स अ वेरी ओल्ड वर्ड जिसको जो हम तभी यूज करते थे जब हमें स्पेस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो हम अज्यूम करते थे कि स्पेस में कहीं पे तो हेवन है. सो सेलेस्टियल मतलब हेवन में से, यानी स्काई में से. ओके, so these are the words we looked at today. So that's it for this learning session. I hope you enjoyed it. I hope you understood everything, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and